जैसे आज देश भर के सभी लोगों की इच्छा थी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के 8 प्रांतों के कार्यकर्ताओं ने लाल चौक में सफलतापूर्वक झंडा फहराया। जहां वो रुके थे वहां, वही मैं बता रहा हूं, जहां वो रुके थे लाल चौक पर ही, वही वो झंडा फहराने के लिए झंडा अपने होटल से फहरा कर जैसे लाल चौक बढ़ रहे थे तभी उनको गिरफ्तार किया गया। और इसलिए एक तरह से आंदोलन की सफलता हुई है। जहां तक कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के न्योते का सवाल है कि जो उन्होंने दिया था सुषमा जी और अरुण जी को, दोनों विपक्ष नेताओं को, कि हमारे परेड ग्राउंड में जो हम झंडा फहराएंगे उसमें शामिल हो, लेकिन कैसी विडंबना है कि एक तरफ मुख्यमंत्री न्योता देता है और दूसरी तरफ उनको बंदी बनाया जा गया है, परेड समाप्त होने तक भी उनको छोड़ा नहीं है। तो इसलिए एक तरफ न्योता देना और दूसरी तरफ बंदी बनाए रखना, ये नियत साफ नहीं है, इसका ये लक्षण है। और इसलिए ये जो आंदोलन चला ये बहुत ही सफल रहा। देश भर के लाखों नौजवानों ने भी उसको समर्थन दिया और सभी लोगों ने समर्थन दिया कि ये कैसा अपराध हो गया कि अपने ही देश में झंडा फहराना अपराध जैसे सरकार ने मान लिया। इसको किसी ने पसंद नहीं किया और आखिर युवा वहाँ पहुँचे। उनके नाम भी हम रिलीज़ करेंगे। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, असम, इन सभी प्रांतों से वहाँ कार्यकर्ता पहुँचे और कार्यकर्ताओं ने झंडा फहराने का अपने होटल से निकलकर ये किया, होटल में फहराया और फिर लाल चौक में जाते उनको गिरफ्तारी हुई। या वी आर हैप्पी दैट द एजिटेशन टू अनफर्ल द national flag on the Republic Day in Lal Chowk of Srinagar has succeeded. Our workers from Orissa, Gujarat, West Bengal, Assam, Karnataka reached successfully to Lal Chowk area, and from their hotel they unfurled the flag where they were trying to reach Lal Chowk when they were arrested. And this was the feeling of the country that how unfurling or hoisting a national flag on Republic Day in any part of the country. They've been released. Yeah. They're just. Yeah. Any part of the country is, government made it a crime. But millions of youths participated in our agitation and it was a grand success. Now only we have learnt that our leaders and workers who were arrested in Jammu are released. But it is an irony that when the Chief Minister Omar Abdullah asked of leaders of opposition Sushma ji and Arun ji to participate in the government function to unfurl the flag at parade ground, he keeps them in custody and gives them the invitation to participate. This was irony. We condemn this attitude. This was nothing but a petty politics. And as now they are released, they will come to Delhi and we will welcome at our headquarters in the evening. Yeah. The incidents of Manmad shows the nexus between the mafia, oil mafias, and those who protect them from the government side. We condemn these incidents and we really fail to understand, knowing fully well that in diesel, much of the kerosene which is released for the general public or the poorer sections of the society at 9 rupees is adulterated at large quantities. Why government does not come out with a policy of kerosene coupons
which can immediately prevent such adulteration and which is a need of the hour. But we immediately we demand a immediate high-level inquiry from the central government, because the Maharashtra government's vested interests are mingled with the adulterers and the oil mafias. That is why, and this is the national phenomena, and there has to be proper inquiry and immediate a kerosene coupon system has to come so that adulteration can be stopped. जिस तरह से मनमाड़ में एक उच्च अधिकारी को जो मिलावट के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे थे, उनको उप जिलाधिकारी थे, उनको जिस तरह से जिंदा जलाया गया, ये कहानी है कि बहुत ही गंदा जो एक ऑयल माफिया जो मिलावट करते हैं और जो उनको संरक्षण देने वाले राजनेता है, इनके मिलीभगत के कारण इस प्रामाणिक अधिकारी की मृत्यु हुई है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जब केरोसिन कूपन जैसी पद्धति प्रणाली ला सकते हैं और जिससे गरीब को भी 9 रुपये में मिलेगा, लेकिन मिलावट के लिए कोई केरोसिन उपलब्ध नहीं होगा। आज आधे से ज़्यादा मिलावट हो रहा है केरोसिन, न गरीब को मिल रहा है और पूरे एक ऑयल माफिया और भ्रष्ट व्यवस्था है, और इसलिए हम इसको अभी हमारे जो 2 नेता सुषमा जी और अरुण जी के नेतृत्व में और सभी लोग जो रिहा हुए हैं, शांता जी और आनंद जी भी उनके साथ है, शांता कुमार जी, और ये सभी अभी जम्मू कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के पहुंच रहे हैं। वहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और वहाँ से वो दिल्ली आएंगे। एयरपोर्ट से शाम को उनको स्वागत करके कार्यालय में 6 साढ़े 6 बजे के दरमियान वो पहुंचेंगे और वहाँ भी उनका जोरदार स्वागत होगा। अनुराग ठाकुर अलग रूट से आ रहे और नहीं और ये अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में, हाँ, वो अलग अलग जगह जो लोग बंदी बने हैं सब लोग पहुंचेंगे और सबका जोरदार स्वागत होगा। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का आंदोलन पूरी तरह से सफल रहा है। बता दिया। नहीं, ये पूरी तरह से सरकार की जिम्मेवारी बनती है, और सरकार की जिम्मेवारी इसलिए है, लेकिन केंद्र सरकार का भी बहुत जिम्मेवारी है, क्योंकि बार बार लोगों ने चेतावनी देने के बावजूद भी ये ऑयल माफिया और राजनेता जो संरक्षण करते हैं, इनकी मिलीभगत और मिलावट पे डीजल में केरोसिन का ये गोरख धंधा पिछले सालों से चल रहा है। और ये वेस्टेड इंटरेस्ट समाप्त करने के लिए जैसे हमने मांग की कि पेट्रोल कूपन जैसी व्यवस्था लाई जा सकती है, केरोसिन कूपन जैसी, कि जिससे ये समाप्त होगी।